सो इन द लास्ट वीडियो हमने किया थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो टेलर ने दिए थे, और आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक टेक्निक्स दैट आर गिवन बाय टेलर। टेलर ने हमें 5 साइंटिफिक टेक्निक्स दी, जिसमें से फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर कहता है कि हमारी जो काम करने की जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसमें दो मेन चीजें हैं। एक तो है प्लानिंग और सेकंड है ऑपरेशनल। वो कहते हैं कि प्लानिंग एंड ऑपरेशनल बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे शुड नॉट बी मिंगल्ड अप विद ईच अदर। दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको सेपरेट रखा जाए, दोनों आपस में एक दूसरे में इंटरफियर ना करें। एक तो उसने ये चीज इंपॉर्टेंट कही, और दूसरा उसने ये कहा that one person cannot be perfect in each and everything, right? He cannot be a good manager, he cannot be a good technician, he cannot be a good in arranging all the things. So he said total 8 bosses are required. Out of these 8 bosses, he said 4 should go in the planning department और 4 जाएंगे हमारे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। तो हमें टेलर ने ये कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम है उसे हम 2 साइड्स में डिवाइड करेंगे। वन साइड विल बी द प्लानिंग, सेकंड साइड विल बी द ऑपरेशनल। एंड इन प्लानिंग 4 bosses will be given, and in operational 4 bosses will be given, and every boss will be expert in its own field. तो प्लानिंग में जो टेलर ने हमें 4 बॉसेस सजेस्ट किए, वो कौन कौन से बॉसेस हैं? पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क मींस ही विल सेट द सीक्वेंस ऑफ द टास्क, मींस काम को कैसे करना है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट विल बी टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, दैट विल बी द जॉब ऑफ द रूट क्लर्क। सेकंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। Instruction card clerk, as the name is telling, instruction. He will issue the general instruction for doing a job. Third is time and cost clerk, क्योंकि ये हमारा प्लानिंग का हिस्सा है. So in this time clerk and the cost clerk, he will set the standard time for doing a job. He will set the standard cost in which the task has to be completed. And the last one is the disciplinarian. Disciplinarian will see that every task it should go in a systematic manner. So हमारे प्लानिंग में हो गए 4 बॉसेस। एक है रूट क्लर्क, सेटिंग द सीक्वेंस फॉर डूइंग अ जॉब। सेकंड वन इज issuing the general instructions. Third is setting the standard time and standard cost in which the task has to be completed. And the last one is which is seeing that the task should be done in a systematic manner. अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, और सेकंड डिपार्टमेंट है हमारा ऑपरेशनल। अब ऑपरेशनल में क्या होगा? द वर्क इज एक्चुअली कैरिड आउट. सो द फर्स्ट वन इज द गैंग बॉस. Gang boss will arrange all the things, means all the required material should be available. Second is speed boss. जो यहाँ पे हमने स्पीड सेट की है, यहाँ पे ये देखा जाएगा that the task should be done in that proper time. Next is repair boss. All the machinery, all the tools, they should be in the working condition. And the fourth one is the inspector. He will see that the quality has to be maintained. He will check the quality of the products. तो ये है हमारे operational bosses के काम. First वाले में arranging all the things, gang boss. Speed has to be ensured, means the task has to be completed on time. That is the speed boss. Third one is the repair boss. All the machine, all the tools, they should be in the working condition. And the last one is inspector, checking the quality of the production. तो ये हमारा है functional foremanship, where Taylor suggested 8 bosses. Fuel ने कहा 1 boss. Taylor is saying 8 bosses, 4 in planning and 4 in operational. Okay, so this is the first technique, functional foremanship. Now I am taking the second technique. Second technique is standardization and simplification. Standardization and simplification, दो चीजें हैं ये. One is the standardization and second is the simplification. तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, that is the standardization. Standardization means setting the standard for each and everything. When the work is started, right from that point, the standard has to be maintained, and it has to be maintained till the last task, till the last job.
फॉर एग्जाम्पल शुरुआत कहाँ से होती है? स्टार्टिंग इज फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, वहां से आप स्टैंडर्ड मेंटेन करना शुरू करो। आप मशीनरी ले रहे हो, उससे स्टैंडर्ड मेंटेन करो। जितने भी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, इन ईच एंड एवरीथिंग द स्टैंडर्ड हैज टू बी मेंटेन्ड, एंड इवन आफ्टर द प्रोडक्शन फॉर ईच एक्टिविटी स्टैंडर्ड हैज टू बी मेंटेन्ड। जब हम शुरू से लेके आखिर तक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, then what will be the advantage? Advantage is very simple, that the product will be of the standard size, standard with the standard features, and they will be of the standard type. No problem how many production is done, but every product is carrying the same size, same quality, same type, same features. So that will be the first advantage. Second advantage is standard quality. The quality will be standard because right from the starting till the end everything is standardized. Last one is standard performance. क्योंकि हमने हमारा यहाँ पे पॉइंट ही स्टैंडर्डाइजेशन का है, तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि जो अल्टीमेटली जब हमने हर काम का स्टैंडर्ड का ध्यान रखा तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस भी स्टैंडर्डाइज्ड आने लगेगी। सो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और इन सब के का एडवांटेज जब हमारी हर चीज में स्टैंडर्ड मेंटेन है, व्हाट विल बी द अल्टीमेट एडवांटेज? दैट विल बी द interchangeability. Interchangeability is possible when right from the starting till the end standard is maintained in each and every activity. What is interchangeability? ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंटरचेंज करना चाह रही है, जो काम पहले एक डिपार्टमेंट में हो रहा था अब हम किसी दूसरे को देना चाह रहे हैं, दैट इज पॉसिबल व्हेन द स्टैंडर्ड इज मेंटेन। एक पार्ट है प्रोडक्ट का जो एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बन रहा है, अब हमें लग रहा है कि हम इसको यहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको प्रोड्यूस करने के लिए दे दें और उसके बाद वो आगे जाके कहीं और असेंबल हो जाए। इट कैन बी डन वेरी इजीली। व्हाई? बिकॉज डजंट मैटर कि प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है, हमने तो हमेशा से ही स्टैंडर्ड का ध्यान रखा है, हमारी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड है, रॉ मटेरियल, टूल्स, टेक्नोलॉजी, सो इंटरचेंजेबिलिटी इज वेरी इजी। सो दिस विल बी द एडवांटेज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ इस सेम टेक्निक में हमारा जो सेकंड मेन पॉइंट है दैट इज द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का बहुत सिंपल ही मीनिंग है, उसका मतलब है डोंट गो फॉर द अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन। Unnecessary diversification means when the producer produce the goods in of many types, of various varieties. So unnecessary diversification नहीं होनी चाहिए, एक ही चीज के हम बहुत डिफरेंट टाइप्स बनाते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एकदम एग्जाम्पल समझ आएगा। एक शैम्पू के लिए आप शैम्पू परचेज करने जाओगे तो मार्केट में एक ही कंपनी के डिफरेंट टाइप्स के शैम्पूज अवेलेबल होंगे, कोई ड्राई हेयर के लिए, कोई सिल्की के लिए, कोई डैंड्रफ के लिए। सो दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन। टेलर यहाँ कहता है यू गो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन बट डोंट गो फॉर द अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि जब हम अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन में जाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी एफिशिएंसी कम होने लगती है, क्योंकि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लग रहे हैं, तो हमारी क्या है, एफिशिएंसी डाउन जाती है। और उसके साथ साथ हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए, ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल चाहिए। तो जब हम अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को कम करके सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएंगे तो अल्टीमेटली एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज होगा कि हमारी एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन। इसी का एक एग्जांपल उन्होंने दिया है। इन यूएसए वन पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज देयर, वो 200 टाइप्स ऑफ पेपर बनाते थे, सॉरी दे वर मेकिंग 2000 टाइप्स ऑफ पेपर। और जब उन्होंने सिंप्लीफिकेशन को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जब उन्होंने उस डाइवर्सिफिकेशन को कम करके वो 200 टाइप्स तक लाए, दे वर मेकिंग 2000 टाइप्स बट नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग 200 टाइप्स ऑफ पेपर। अल्टीमेटली सेम एडवांटेज उनको मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेंट डाउन एंड एफिशिएंसी वाज इंक्रीज्ड। तो ये हमारा सेकंड साइंटिफिक टेक्निक है, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने हर चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन किया और सिंप्लीफिकेशन में हमने अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को एलिमिनेट करके सिर्फ उतने टाइप्स की प्रोडक्शन की विच इज रिक्वायर्ड बाय द मार्केट। ओके, सो दो हमारी टेक्निक्स हो गई,
In next video, I'll take few more techniques.